Hello students, I am Kumar going to discuss part 2 of chapter 8 gravitation of class 11. In this part I am going to discuss the topics which are Newton's universal law of gravitation, gravitational constant capital G, acceleration due to gravity of the earth, in which we will obtain a relation between small g, acceleration due to gravity, and gravitational constant capital G, and acceleration due to gravity below and above the surface of the earth. That is, variation of acceleration due to gravity due to height and depth above the earth surface. First of all, Newton's universal law of gravitation. According to Newton, every particle of the universe attracts every other particle with an attraction force which is called gravitational force or gravitation. The gravitational force acting between two masses is directly proportional to the magnitude of their product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. Newton's universal law of gravitation. न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक, यूनिवर्सल का हिंदी होता है सार्वत्रिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल इसलिए यह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, टेरेस्ट्रियल जो अर्थ पर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स के लिए वैलिड होगा, और टेरेस्ट्रियल बॉडीज के लिए भी, हेवनली ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा। आकाशीय पिंडों के लिए भी, यानी दो आकाशीय पिंडों के बीच, दो हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू मालूम किया जा सकता है इस लॉ से, विच इज कॉल्ड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम हिंदी में। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन and it is gravitational force acting between two masses of m1 and m2 separated by distance small r is given by F varies as magnitude of force acting between two masses. Magnitude of force is F, capital F, is directly proportional to the product of two masses m1 and m2, and is inversely proportional to, that is, gravitational force acting between two masses is inversely proportional to 1 by r square. This is Newton's law of gravitation. From the statement of Newton's law of gravitation, we get these two results, F inversely proportional to m1 and m2, from the first part of the statement of Newton's law of gravitation, and from the second part of the Newton's law of gravitation. Gravitational force, magnitude of gravitational force is inversely proportional to the square of distance between them. मतलब डिस्टेंस अगर लार्ज होगा, ज़्यादा लार्ज होगा, दो पार्टिकल्स के बीच में, दो मासेस के बीच में डिस्टेंस लार्ज होगा तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। अगर दो मासेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर कम होगा, स्मॉल होगा। इफ डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी लार्जर, एंड वाइस वर्सा. But gravitational force acting between two masses is directly proportional to the product of their magnitude of force acting between, magnitude of attraction force, gravitational force acting between two masses m1 and m2 separated by distance m1 and m2 separated by distance r
And in this situation, M1 will attract M2 with a force that is F12. This is F12 vector, and M2 will also attract M1 with the same magnitude but in opposite direction, and this is F21. F21, that is force acting on F21, force acting on mass M2 by mass M1 is F21 vector. But F21 vector is F21 vector mod of F21 vector is equal to mod of F12 vector, but in opposite direction, therefore minus sign is taken. ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड माने M1 मास पर M2 मास के कारण जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो F12 हो गया, जिसका डायरेक्शन पार्टिकल मास M2 से M1 की तरफ है। और अब M2 मास पर भी M1 के कारण जो है फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F21, फोर्स एक्टिंग ऑन मास M2 बाई मास M1। M2 भी M2 मास पर भी M1 के कारण फोर्स एक्ट करेगा, तो F21, और M1 मास पर M2 मास के कारण जो फोर्स काम किया, फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 ड्यू टू मास M2 इज F12 वेक्टर, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन मास M2 ड्यू टू मास M1 इज F21 वेक्टर। दोनों फोर्सेस का F12 और F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, सो माइनस साइन इज टेकन हियर। देयरफॉर F21 इजकल टू F21 मॉड हो गया, F21 इजकल टू यहाँ हो गया F12। माइनस साइन केवल अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और इसको F मान लिया गया, F से। दोनों जो फोर्सेस है, दोनों पार्टिकल, दोनों मासेस पर एक दूसरे के कारण म्यूचुअल जो अट्रैक्शन फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड हियर टू मासेस M1 and M2 which are located at 2 points A and B in the universe separated by distance r is given by F varies as M1 into M2। तो चूँकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को हमने F सपोज किया है, कैपिटल F, F12 और F21, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। Now combining both, we have we have both means from the statement of Newton's law of gravitation, according to which the gravitational force acting between two masses separated by distance r is directly proportional to the product of their masses, that is masses are M1 and M2, which are located at M1 and M2 separated by distance small r in the universe. So then gravitational force, according to Newton's law of gravitation, gravitational force acting between two masses is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to a square of distance between them. तो उस स्टेटमेंट से उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया यहाँ, F varies as M1 M2 and F varies as 1 by r square, where M1 and M2 are masses of two particles or two bodies separated by distance small r. So combining both, we have F varies as M1 M2 upon r square, और F equals to capital G M1 M2 upon r square. This is mathematical form of Newton's law of gravitation. This is the mathematical form of Newton's law of gravitation. और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। This is Newton's universal law of gravitation. It is universal law of Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation. और इस फार्मूला पर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जा सकता है, जिसको मैं अलग से करूँगा। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल इसलिए जैसा कि मैंने पहले बतलाया, यह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पर, उनके बीच में भी काम करेगा, एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और दो हेवनली ऑब्जेक्ट है, दो आकाशीय पिंड है हेवनली ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स यही सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड करेगा। देयरफॉर दिस लॉ गिवन बाय न्यूटन इज कॉल्ड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F is equal to capital G M1 M2 by r square, where G is a proportionality constant which is called universal constant or gravitational constant, where G is called proportionality constant है, G is called universal constant,
और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कहीं भी इसका वैल्यू सेम होगा, किसी भी प्लैनेट पर, किसी भी जगह पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कैवेंडिश ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा, हेनरी कैवेंडिश ब्रिटिश साइंटिस्ट ने कैपिटल जी का वैल्यू ऑब्टेन किया 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 SI यूनिट न्यूटन, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। जी का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर कैवेंडिश ने ऑब्टेन किया अपने एक्सपेरिमेंट से, विच इज नोन एज Cavendish experiment to determine the value of gravitational constant capital G. So G is a proportionality constant which is called gravitational constant. It is also called universal constant. और इसका value of G is found to be 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square per kg square, and it was determined by this value of G, capital G was determined by an English scientist Henry Cavendish in his by his experiment. Now dimensional formula of gravitational constant can be also obtained, and this Newton's law of gravitation, universal law of gravitation, can be expressed in vector form as, so equation 1 in vector form can be represented as f vector। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल जी m1 m2 r स्क्वायर, और r के डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल, इसका मासेस m1 m2 है, दोनों बॉडीज और पार्टिकल्स के मास का मासेस m1 m2 है, उनके बीच का सेपरेशन r है, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के एलोंग ही या तो m1 मास की तरफ नहीं तो m2 मास की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन कर, दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग ही मतलब r के अलोंग जो डिस्टेंस r है, r12 का है, दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों मासेस का r12 या r21, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसे r से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसी के अलोंग ये फोर्स काम करेगा, आइदर मास m1 की ओर या m2 की ओर, इसलिए देयरफॉर यूनिट वेक्टर along r is r cap. So in terms of unit vector, Newton's universal law of gravitation can be expressed as f vector is equal to G, capital G, m1 m2 by r square r cap, and this is equation 2, which is vector form of Newton's law of gravitation. This is vector form of Newton's law of gravitation or universal law of gravitation, where r cap is the unit vector along the line joining two masses m1 and m2, that is along r, ए से बी का डिस्टेंस r12 और r21, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको r12 वेक्टर और r21 वेक्टर, दोनों का जो डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए उसको सपोज किया गया है r। तो अब g का अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g इससे लिखा जा सकता है। g का वैल्यू हमने लिखा, मैंने 6 पॉइंट कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। और नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G इज dimensional formula of capital G, dimensional formula of capital G is डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाएगा, फोर्स इंटू जी को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से एलिमिनेट किया जा सकता है, आर स्क्वायर एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1, dimension formula f1 mass m1 and m2, and dimension formula of force is mlt minus 2, dimension formula of force is mlt minus 2, dimension of distance is l का पावर 2, m1 is m, capital M,
M2 इज कैपिटल M से M कैंसिल हो गया, दैट इज वी ऑब्टेन डायमेंशन फार्मूला ऑफ M+1 है, M नीचे में M है तो M का पावर 1 समझा जाएगा, ऊपर जाके -1, L टू द पावर 2, यहाँ L का पावर केवल L है तो L का पावर 1 हो जाएगा, L टू द पावर 3 T-2, एंड दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G. This is dimension formula of gravitational constant is M-1 L to the power 3 T-2, and dimension equation of gravitational constant is G under bracket is equated by its dimension formula. Then it is dimensional equation of gravitational constant capital G. G under bracket is equal to M-1 L3 T-2, and this expression M-1 L3 T-2 is the dimensional formula of gravitational constant, and this is the G under bracket is equal to -1 M-1 L3 T-2. दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G. और केवेंडिश ने G का जो वैल्यू ऑब्टेन किया तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक बार या मेटल रॉड के दोनों एंड पर दो स्मॉल स्फेयर्स अटैच किए गए, जिसका नाम दिया जा सकता है A एंड B, और उसे सपोर्ट से उस रॉड को उस बार को एक सपोर्ट से लटकाया गया, एक रिजिड सपोर्ट से, और यहाँ देखिए बार यहाँ पर, और यहाँ दो स्फेयर, ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ G, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन the value of G, to determine the value of G. और इसके लिए कैवेंडिश ने एक सपोर्ट से एक बार को, मेटल वायर को सस्पेंडेड किया, एक वायर को, मेटल वायर को, जिसके दोनों एंड पर दो स्मॉल ग्लास पेयर अटैच्ड किए गए, और उन दोनों उस मेटल रॉड के दोनों साइड में, उन दोनों जो स्मॉल ग्लास बॉल उसके दोनों साइड में, या मेटल रॉड के दोनों साइड में दो बिग स्फेयर रखे गए, जिनका अट्रैक्शन इफेक्ट उन दोनों स्मॉल ग्लास स्फेयर पर क्रिया एक्ट करता है। यह सपोर्ट है और इससे एक बार या मेटल वायर है, ए बी, यहाँ पर दो स्फेयर ए बी है जिसके दोनों एंड पर, ए बी के दोनों एंड पर दो स्फेयर अटैच किए जाते हैं यहाँ पर, और इसके दोनों साइड में, मतलब यहाँ पर एक स्फेयर है, एक बिग स्फेयर S1, और यहाँ पर इसके माने इस वायर के मेटल जो अथी है, बार है, ये रॉड है या वायर है, मेटल वायर या बार उसे कहें, और इसको रिजिड सपोर्ट से लटकाया गया है। एक वायर की हेल्प से इसे लटकाया गया है, सपोर्ट यहाँ से, रिजिड सपोर्ट से। तो अब दूसरा स्फेयर यहाँ S2 इसके ऊपर रखा गया, ये S2 हो गया। अब ये दोनों स्फेयर्स S1 S2 से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इस पर फोर्स काम करेगा, इधर ये फोर्स काम करेगा, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस पर फोर्स काम करेगा, इस स्मॉल स्फेयर पर S2 के द्वारा फोर्स काम करेगा ऊपर की ओर, ये भी F हो गया फोर्स, और ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए ये एक टॉर्क का, एक कपल का फॉर्मेशन करेगा, और मोमेंट ऑफ द कपल इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, मोमेंट ऑफ द कपल इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द टॉर्क एक्टिंग, तो टॉर्क एक्ट करेगा एक्टिंग ऑन द दिस मेटल बार, एंड टॉर्क इज, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम सपोज करते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस L है, बार का जो लेंथ है, ए बी बार का जो लेंथ है वह L है, जिसके दोनों एंड्स पर दो ग्लास स्फेयर्स हैं, ए है और यहाँ पर B है।
अब इसके बीच जो डिस्टेंस है दोनों का, यहाँ दोनों स्फेयर्स के बीच में, माने स्मॉल स्फेयर इसके बीच का डिस्टेंस, ग्रेविटेशन फोर्स तो काम करेगा, एक्ट करेगा इस पर, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा इसके द्वारा। तो लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम सपोज करते हैं, इस डिस्टेंस को सपोज करते हैं डी है, स्मॉल डी। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, इसका मास है एम, कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, इसका भी मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, दोनों आइडेंटिकल स्फेयर्स है S1 एंड S2। तो जो टॉर्क एक्ट करेगा तो टॉर्क होगा, क्योंकि यह कपुल, ये दोनों स्मॉल स्फेयर्स पर जो फोर्स काम करेंगे एक दूसरे के अपोजिट हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसलिए ये कपुल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये मास है, ये स्फेयर है S2 जो कि S1 के आइडेंटिकल है, इसका मास भी m है, और यहाँ स्मॉल ये बींड पर जो स्फेयर है ग्लास स्फेयर, स्मॉल ग्लास स्फेयर, उसका मास स्मॉल m है। और सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन ये d है। और ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट जो करेगा इसके द्वारा मास S2 के द्वारा इस ये स्मॉल m पर, वह उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। तो दोनों का डायरेक्शन, दोनों स्पेयर्स के कारण जो फोर्स स्मॉल स्पेयर्स A तथा B जो कि बार के दोनों इंड पर अटैच्ड हैं, तो उन पर एक्ट कर रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने से एक कपुल का फॉर्मेशन होगा, और वह कपुल, मोमेंट ऑफ द कपुल इज द टॉर्क। ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये फोर्स है M1 के द्वारा M2 पर, ये फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स F हो गया। और डिस्टेंस जो दोनों के बीच में ये स्मॉल d है, और बार का लेंथ जो है L है। तो यहाँ जो टॉर्क एक्ट करेगा इस मेटल बार पर, वह होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग, आइदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन two ends of the bar, and which is and both forces are acting on the small glass spheres of mass m, small m, and m, small m respectively at two ends, attached to the two ends A and B of the bar। ये सपोर्ट है जिससे कि बार को एक वायर की हेल्प से लटकाया गया है। तो नाउ टॉर्क एक्टिंग, और ये टॉर्क जब रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तब जा करके इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज कैपिटल F इक्वल टू F इक्वल्स टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, एंड डिस्टेंस दोनों के बीच में, दोनों माने बिग स्फेयर S1 और स्मॉल स्फेयर के बीच मास m के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, d स्क्वायर। अब जो टॉर्क एक्ट करेगा उसमें टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार AB इज, और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा जो कि बार को डिफ्लेक्ट करने का प्रयास करेगा। और इक्विलिब्रियम में जब रिस्टोरिंग टॉर्क इसके इक्वल हो जाएगा तब जा करके बार इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब रेस्ट में होगा, तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार equal to force multiplied by perpendicular distance between two forces। perpendicular distance दोनों फोर्स के बीच में कैपिटल L होगा, which is length of the bar, and F is capital F is here gravitational force acting between two spheres, big spheres S1 and the small sphere attached at point A of mass m is F is capital G, capital M, small m upon d square multiplied by L। अब सस्पेंशन वायर में जो के कारण रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा। जब ये बार पर जब टॉर्क एक्ट करेगा तो बार अपने पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिफ्लेक्ट करेगा, तो उस सिचुएशन में उसके कारण जो सस्पेंशन वायर है उसमें एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा उसमें जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज ड्यू टू ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द सस्पेंशन वायर। द वायर जो डिफ्लेक्ट होगा, बार डिफ्लेक्ट होगा, तो इसमें ट्विस्ट, जो सस्पेंशन वायर है जो सपोर्ट से लटकाए हुए है बार को, उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और उस ट्विस्ट के कारण रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। वह ट्विस्ट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बार पर एक्ट कर रहा है,
F into L, that is G capital M small m upon d square into L. इसका ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, ये दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क acting on the bar of length L is F into L length. Formula is magnitude of either forces acting between two spheres here and S1 and A and फिर S2 and B. फोर्स का डायरेक्शन दिखाया गया है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, डिस्टेंस दी है, ये अटैक करेगा S2 स्फेयर, F1 B स्फेयर B को, स्मॉल ग्लास स्फेयर B को अटैक करेगा जिसका मास स्मॉल m है, with a force that is given by capital G capital M small m by d square according to Newton's law of gravitation, where d is the distance between big sphere and small sphere. Now restoring torque acting on the restoring torque produced due to twist produced in the suspension wire. Restoring torque is ये टॉ सिंबल हो गया r, ये टॉ रिस्टोरिंग हो गया, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया टॉ d, ये टॉ r है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये प्रोपोर्शन होता है टॉ इंटू, ये प्रोपोर्शन होगा c इंटू थीटा. थीटा इज द डिफ्लेक्शन एंगल, थीटा इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the bar, and while c is the twisting couple per unit twist in the wire. So c is the twisting couple per unit twist produced in the wire. That is torsional constant. C is torsional constant or twisting constant. That is twisting couple produced per unit twist of the wire. इसको टॉ से भी डिनोट किया जा सकता है, तो सी से हमने किया है. इन द इक्विलिब्रियम दोनों इक्वल हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क. इन द इक्विलिब्रियम दोनों इक्वल हो जाएंगे. दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉ डी इक्वल टू टॉ आर, और वी हैव नाउ वैल्यू ऑफ टॉ डी इज एफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर इंटू एल, एंड टॉ आर इज सी इंटू थीटा, where c is the twisting constant of the suspension wire through which wire is suspended. Therefore, tau d is capital G capital M small m upon d square multiplied by L equals to c into theta. Therefore, हमें g का वैल्यू मालूम करना है. इस फॉर्मूला से g का वैल्यू c into theta multiplied by d square upon capital M small m. Capital M is the mass of big sphere. Two big spheres S1 and S2 are taken, while two small spheres, glass spheres, are attached to two ends of the bar. So m into small m into L. And using this formula, Cavendish was able to determine the value of G, and which was found to be 6. इसी फार्मूला से इसमें जो वैल्यूज हैं सबका वैल्यू, इसमें डिफरेंट जो क्वांटिटीज हैं उसके वैल्यूज को पुट करने के बाद, तो वैल्यू ऑफ जी इज वाज फाउंड बाय कैवेंडिश एज 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2. दिस वाज ऑल अबाउट कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ capital G, and value of G was found to be 6.67 into 10 to power -11 Newton meter square kg -2. Now next topic is acceleration due to gravity of the earth. That is, we have to obtain the relation between acceleration due to gravity small g and gravitational constant capital G. पृथ्वी की सतह पर पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण जिसमें स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन ऑब्टेन किया जाएगा. अर्थ कैन बी सपोर्ट एज ए स्फीयर whose mass is concentrated at its center.
अर्थ को एक गोला माना जा सकता है जिसका रेडियस बहुत अधिक है और जिसका इंटायर मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। सपोज किया जाता है कि अर्थ का मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और अर्थ को स्फीयर के रूप में एक स्फीयर माना जाए और इसका टोटल मास इसके सेंटर पर सपोज है, ये सेंटर है जहाँ पर इसका मास कैपिटल M कंसंट्रेटेड है। अब सपोज किया जाता है कि इसके सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास है और दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल होगा विच इज कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ। दोनों का मतलब अर्थ का टोटल मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है ऊपर और एक ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस पर, यहाँ मान लिया कि ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दोनों मासेस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करना चाहिए, एक्ट करेगा सेंटर की तरफ। अर्थ चूँकि लार्जर बॉडी है इसलिए अर्थ के सेंटर की तरफ मास इसका चूँकि अर्थ का सेंटर है सपोज किया जा सकता है उसके सेंटर पर ऊपर और इसके सरफेस पर जो स्मॉल m मास है इस पर भी दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा सेंटर की तरफ और इस ऑब्जेक्ट m का वेट जो है वह भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड, मतलब टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट वह फोर्स है जिस फोर्स से F हो गया ग्रेविटेशन फोर्स, वेट वह फोर्स है, वेट जो होगा इस फोर्स के इक्वल होगा जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर या अपनी ओर अटैक करता है, उतने फोर्स को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F कैपिटल F को हम उस बॉडी का वेट कहेंगे। तो अब यहाँ जो वेट ऑफ द बॉडी, अब सपोज करता है कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। कोई बॉडी फॉली फील्डिंग होता है तो जैसे जैसे वह अर्थ के नज़दीक आएगा उसका स्पीड बढ़ता जाता है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का वेग समय के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे वह अर्थ की ओर आता है तो उसके वेग में वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट इन या इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हेन इट इज रीचेज क्लोज टू द अर्थ, its speed increases, therefore acceleration is produced in the body and that acceleration is called acceleration due to gravity। तो जो मुक्त रूप से गिरने वाला पिंड है तो उस पर अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा और वह ग्रेविटेशन फोर्स उसके वेट के इक्वल होगा, उस बॉडी के वेट के इक्वल होगा। तो अर्थ के सरफेस पर यहाँ जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है इसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड। अगर सपोज करते हैं कि ये अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट ए पर कितना है स्मॉल g है, तो यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ एक्ट करेगा सरफेस पर mg और वह इक्वल होगा ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन मास ऑफ द अर्थ एंड मास स्मॉल m विच इज प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन which is capital G F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन। और ये जो दोनों मास के बीच का डिफरेंस, दोनों मास के बीच का जो डेटी है, दोनों मास के बीच का सेपरेशन हुआ कैपिटल R है जो कि अर्थ रेडियस के अर्थ का जो रेडियस है कैपिटल R 6.4 इंटू 10⁶ मीटर या 6,400 किलोमीटर उसके इक्वल है। दोनों मासेस का, एक अर्थ का मास जो कि सपोज किया जाता है, अर्थ के मास को सपोज किया जा सकता है उसके सेंटर पर कैपिटल M और दूसरा उसके सरफेस पर मास है स्मॉल m ए पॉइंट पर जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर g है। तो वी हैव W वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, W हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी ऑफ मास m small m placed on the earth surface और ये वेट हो जाएगा कितने के इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ सपोज किया जाता है कि अर्थ के सरफेस पर कि पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है, तो वेट ऑफ द बॉडी इज mg एंड ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन मास m and small m, that is an object of mass m which is placed on the earth surface। तो अर्थ का अपना मास कैपिटल M उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है ऊपर और ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है वह अर्थ के सरफेस पर
प्लेस्ड है, रखा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन जी एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन two masses, capital M, that is mass of the earth, and the object, a small m, placed on the earth's surface. Gravitational force acting between masses capital M, which is mass of the earth, and mass small m, which is mass of the object placed on this earth's surface. And this is given by capital G, this is given by capital G, capital M, a small m, अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस है जो कि अर्थ के रेडियस के इक्वल है, और अर्थ का मास जो कि सेंटर पर कंसंट्रेटेड माना जाता है, और उसके सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर स्मॉल एम का मास है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह कैपिटल आर होगा। तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन ए ओ की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इधर वेट भी काम कर रहा है उसी के लॉन्ग। देयरफॉर डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा इस सिचुएशन में, वेट ऑफ द डब्ल्यू इजकल टू एफ, W इजकल टू एफ हो जाएगा, वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर W इजकल टू कैपिटल एफ, और W इजकल टू एम जी, कैपिटल एफ इजकल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया। देयरफॉर G इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, जिसका हेडिंग भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, विच इज स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3, एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब इसको वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ, एम जो है अर्थ का द्रव्यमान है, मास है, और कैपिटल आर अर्थ की त्रिज्या है, अर्थ का रेडियस है। अब इसे डेंसिटी के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है स्मॉल जी, और एक और रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ को लिखा जा सकता है, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ इजकल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। मास ऑफ द अर्थ इजकल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ multiplied by density of the earth. Volume of the earth is 4/3 pi r cube into rho. Density, suppose density of the earth material is rho. So equation 3 becomes, अब m सब्स्टिट्यूशन करेंगे, m का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 becomes स्मॉल जी कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, एम इजकल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। आर स्क्वायर से एक पावर, आर क्यू का 2 पावर कैंसिल हो गया, 1 पावर बचा। देयरफॉर जी इजकल टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर इंटू रो। तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच रिलेशन। स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस हेयर एट पॉइंट ए, दैट इज ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, स्मॉल जी। तो G इजकल टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर इंटू रो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दैट इज G इजकल टू कैपिटल जी इंटू 4/3 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई रो, और ये रिलेशन नंबर 4। दिस इज द अगेन रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, बट इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी रो of the earth material. Here small g, relation between small g and capital G in terms of mass and radius of the earth. Now acceleration due to gravity above the earth's surface, that is variation of acceleration due to gravity with height above the earth's surface. पृथ्वी के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर जाने पर, जैसे कि अगर माउंटेन पर जाते हैं हम, तो वहाँ पर जी का वैल्यू में क्या चेंज आएगा, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, उसे ऑब्टेन करना है। जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, इसे हमें ऑब्जर्व करना है। सपोज किया जाता है कि अर्थ के सरफेस, अर्थ एक स्फीयर है जिसका मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ओ पर, सेंटर वो है अर्थ का।
जहाँ मास कंसंट्रेटेड है, और इसके सरफेस पर इसका सरफेस का पॉइंट ए है जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कि पहले भी हमने देखा, स्मॉल जी इजकल टू जी एम, स्मॉल जी इजकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पर नहीं है बल्कि सरफेस एच हाइट पर है। ये सपोज करते हैं कि हाइट एच है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से एच हाइट पर ले जाया गया है, यहाँ सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, और जब ऑब्जेक्ट को ले जाया गया एच हाइट पर अर्थ के सरफेस से, मान लिया कि किसी हिल पर ले गया गया, किसी माउंटेन पर ले जाया गया, तो उस बॉडी का वेट काम करेगा डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ काम करे, अर्थ की तरफ एक्ट करेगा। और अब यहाँ पी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम सपोज करते हैं कि जी1 है, जबकि सरफेस पर जी है, तो यहाँ पर जी1 का वैल्यू जी से कम होगा या ज़्यादा होगा। इसी के लिए पहले तो जी के लिए एक्सप्रेशन मालूम करेंगे और उसके बाद जी का वैल्यू कम होगा या ज़्यादा होगा अर्थ सरफेस से, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, अभी हमने उस रिलेशन को ऑब्टेन किया था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। So now first of all acceleration due to gravity, since acceleration due to gravity, since acceleration due to gravity at the earth surface, gravity at the earth surface is G is equal to small g is equal to capital G capital M. Capital G is the gravitation constant, capital M is the mass of the earth and R is the radius of the earth, जिसको इस डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया गया है कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि अर्थ सरफेस से एच हाइट पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जी1 है तो जी1 का वैल्यू जी से घटेगा या बढ़ेगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो पी पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी1 है तो उस सिचुएशन में बॉडी का जो वेट होगा वह डाउनवर्ड काम करेगा एट पॉइंट पी एबव द अर्थ सरफेस, एट पॉइंट पी एबव द अर्थ सरफेस, एबव हाइट एच, एट हाइट एच या एबव द अर्थ सरफेस, दैट इज एट हाइट एच एबव द अर्थ सरफेस, that is at height h above the earth surface. Weight of the body, weight of the body of mass small m is weight is equal to mass into acceleration due to gravity, that is W is equal to mg1, वेट काम करेगा और ये इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन। अब इस पर ये अर्थ से इस बॉडी को अपनी ओर रोटेट करेगा, तो अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा F, एंड दिस विल इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन कैपिटल F, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी, दैट इज कैपिटल M, मास कैपिटल M विच इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड मास स्मॉल m विच इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल force acting between capital M, masses capital M and small m. Capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the object placed at point P, और mg1 equals to capital F is equal to capital G capital M small m, and this distance OP is equal to OA plus AP, that is radius of the earth plus height above the earth surface is h, r plus h का स्क्वायर, using Newton's law of gravitational force acting between the earth of mass m capital M and object of mass small m is capital G, m1 की जगह कैपिटल M हो गया, m2 की जगह स्मॉल m, अपॉन डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से पॉइंट P का r plus h, m से m कैंसिल हो गया, therefore g1 is equal to g1 is acceleration due to gravity at height h above height h of the earth surface, that is at point P, acceleration due to gravity at point P, that is above height h of the earth surface, g is equal to g1 is equal to capital G capital M
अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम अर्थ सरफेस से एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऑब्टेन करने में सफल हो गए। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि जीवन का वैल्यू मैंने उस पॉइंट पी पर एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ सरफेस पर के पॉइंट ए पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है जो स्मॉल जी कैपिटल जी रिलेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, इससे ऑब्टेन हो सकता है, यहाँ से ऑब्टेन हुआ है। तो अब हम डिवाइडिंग 2/1 कंपेयर कर लें, उससे हमको रिजल्ट आ जाएगा, जीवन जो है जी के टर्म में मालूम हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा उससे क्लियर हो जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट जी1। अब इस साइड में जी1 2 में 1 से डिवाइड करना है तो जी1 अपॉन जी इक्वल्स टू जी1 इज कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी इक्वेशन 1 में और सरफेस पर जो ग्रेविटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम से जी एम कैंसिल हो गया, दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। Therefore G1 is equal to G multiplied by R स्क्वायर अपॉन, यहाँ से R स्क्वायर अगर हम बाहर करते हैं यहाँ से तो H बाई आर हो जाएगा इस टर्म में, R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, R स्क्वायर यहाँ बाहर, R बाहर निकालने का मतलब R स्क्वायर निकालना होगा तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा और सेकेंड टर्म में H बाई आर, एच अपॉन आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो जी1 इक्वल टू जी इंटू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। एक रिलेशन ये हो गया। Therefore G1 is equal to G1 equals to G upon 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन मालूम हो गया, इक्वेशन नंबर 3। और इससे भी क्लियर है, यहाँ डिनोमिनेटर इसका है 1 से ज़्यादा है, एच बाई आर का टर्म का कुछ भी वैल्यू होगा तो 1 से ज़्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर यहाँ 1 से ज़्यादा है, इसलिए न्यूमरेटर का वैल्यू G1 का वैल्यू स्मॉल हो जाएगा G से। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट डिनोमिनेटर चूँकि यहाँ माइनस होता है तो G1 का वैल्यू, यहाँ अगर माइनस होता है तो G1 का वैल्यू ज़्यादा होता है G से, लेकिन यहाँ प्लस है, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, इसलिए G1 का वैल्यू स्मॉलर होगा G से। दैट इज above height h from the earth surface acceleration due to gravity decreases as we go up above the earth surface, acceleration due to gravity, value of acceleration due to gravity small g decreases। और इसको एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके ऑब्टेन कर सकते हैं, एक और रिलेशन जो कि थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन में होगा, लेकिन यह एग्जैक्ट वैल्यू है G1 का वैल्यू, और इस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जा सकता है, जिसको मैं अलग से इस वीडियो के अतिरिक्त किसी दूसरे वीडियो में सॉल्व करूँगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम और वेरिएशन इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तीन सभी जो फॉर्मूले ऑब्टेन हुए हैं और हो रहे हैं, उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स मैं अलग वीडियो में सॉल्व करूँगा। नाउ G1 इक्वल टू इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, ये तो क्लियर हो गया कि G1 का वैल्यू G से स्मॉलर होगा, मैंने एज वी गो अप above the earth surface acceleration due to value of acceleration due to gravity decreases। इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज G1 इक्वल्स टू G मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर टू द स्क्वायर पावर 2। G1 इक्वल टू G 1 प्लस अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होल पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में प्लस, डिनोमिनेटर में +2 है, ऊपर जाके -2। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज हम कर सकते हैं। G1 इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा टू -2 एच अपॉन आर, और यही सेकेंड रिलेशन है वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ G1 इक्वल टू
जी इंटू 1 माइनस 2h/r। और यहाँ भी डिनोमिनेटर में यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया गया है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पर n की जगह -2 है तो ये h/r के पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above the surface of the earth, above the surface of the earth at height small h, acceleration due to gravity g1 is equal to g अपॉन 1 प्लस h/r²। ये और ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g1 इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h/r, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया h/r के पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके। और यहाँ भी देखिए g1 का जो वैल्यू होगा g अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2h/r है, तो h/r का तो कुछ भी वैल्यू होगा ही, वह g के वैल्यू में से इसको ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो g माइनस 2h/r इंटू जी, तो 2h/r इंटू जी का कुछ वैल्यू होगा तो वह जी के वैल्यू में से माइनस होगा। इसलिए एक्सेलरेशन और जी का वैल्यू क्या है, जी कहाँ है, अर्थ के सरफेस पर, ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसका मतलब है कि जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो g1 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जैसे पी पॉइंट पर अर्थ के सरफेस एच हाइट पर पॉइंट पी है, वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 है, तो g1 का वैल्यू एच हाइट पर g1 माइनस 2h/r। और इससे भी अब साबित हो रहा है कि g1 जो होगा g से स्मॉलर होगा, वो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटेगा। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, दैट इज g1 इज लेस देन g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर g1 क्लियर है कि g1 इज लेस देन g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases as we go up above the earth surface। जैसे माउंटेन पर जाते हैं या उसके ऊपर और भी अधिक हाइट पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटेगा, जो कि इस रिलेशन से इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 से क्लियर है। गो अप, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी गो अप above the earth surface, above the earth surface। अब इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के अंदर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वैल्यू होगा, घटेगा या बढ़ेगा। जैसे कि अर्थ के अंदर, माइंस के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, इसको ऑब्जर्व करना है। Now, second situation in which we have to obtain the formula for acceleration due to gravity below the surface of Earth. That is variation of acceleration due to gravity with depth. Depth means inside the Earth. जब अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ऊपर की ओर जाते हैं, जैसा कि फर्स्ट केस में, फर्स्ट सिचुएशन में देखा गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है, उसके लिए एक्सप्रेशन भी हमने ऑब्टेन किया। अब सेकेंड सिचुएशन में अगर देखा जाए कि अर्थ सरफेस से अंदर जाते हैं, अर्थ के अंदर, मान लीजिए कि किसी माइंस में जाते हैं, तो उसके अंदर जी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो सपोज किया जाता है कि अर्थ जो कि स्फीयर है, अर्थ को एक स्फीयर माना जाएगा जिसका मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा। तो अर्थ का रेडियस आर, कैपिटल आर है, और मास जो आर रेडियस का जो स्फीयर है अर्थ, उसका मास कैपिटल एम है। लेकिन अर्थ के सरफेस के ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, और जिसका वैल्यू एट पॉइंट ए ऑफ द अर्थ सरफेस, एट पॉइंट ए ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, और स्मॉल जी और कैपिटल जी में हम रिलेशन भी जानते हैं। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। एट पॉइंट ए ऑफ द अर्थ सरफेस वी हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ आर रेडियस के अर्थ का मास कैपिटल एम, और इसे डेंसिटी के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैपिटल जी अपॉन
r square multiplied by capital M is mass of the earth of radius r, mass of the earth, that is mass of the sphere of radius r, because earth is supposed to be a sphere of radius r. अर्थ को चूंकि r रेडियस का स्फीयर माना जा सकता है जिसका मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा, केंद्रित होगा. तो g इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर एंड मास ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ चूंकि स्फीयर के रूप में सपोज किया गया है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ मटेरियल इज रो. डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज रो. आर स्क्वायर से आर का आर क्यू का 2 पावर कैंसिल हो गया, 1 पावर बचा. देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज कैपिटल स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर इंटू रो. रो इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ. रो पृथ्वी के पदार्थ का, पृथ्वी का घनत्व है, डेंसिटी है. एंड दिस इज इन केस, इन सेकेंड सिचुएशन, इन सेकेंड केस in which we have to discuss, we are discussing acceleration due to gravity below the earth's surface. This is equation number 1 in Roman. This is acceleration due to gravity on the earth's surface in terms of capital G, radius of the earth and density of the earth. अब जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है वह अर्थ सरफेस से h डेप्थ में आ गया p पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड यहाँ p पॉइंट पर. लेकिन अब ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स जो काम करेगा वह अब r डिस्टेंस में काम नहीं करेगा. मतलब अब चूँकि h डिस्टेंस बिलो आ गए हैं अर्थ सरफेस से, इसलिए अब ग्रेविटेशन फोर्स केवल r-h रेडियस का जो अर्थ होगा और का मास m डैश और उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि अर्थ सरफेस से h डेप्थ में लाया गया है, तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा. मतलब r-h जो रिड्यूस रेडियस है, अर्थ का रिड्यूस रेडियस है, चूँकि अब तो h डेप्थ से बड़ी उसके अंदर आ गया है, अर्थ के अंदर आ गया है, तो इसलिए अर्थ का जो रेडियस है अब रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, वो r-h रहेगा. तो r-h रेडियस का मास m डैश है और ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है. तो इसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा इसके सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, जो कि इसके वेट के इक्वल होगा. तो एट पॉइंट P दैट इज बिलो h है ना, इन डेप्थ, देखिए इन डेप्थ h बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, वी हैव वेट ऑफ द बॉडी एट पॉइंट P. वेट सपोज करते हैं P पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h डेप्थ में g2 है, जबकि h अर्थ सरफेस से h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g1 माना गया था इसके फर्स्ट से केस में. तो नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P बिलो h, बिलो डेप्थ h, एबव बिलो डेप्थ h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस दैट इज पॉइंट A इज h. Then weight of the body is weight of the body in depth h below the surface of the earth, weight of the body is mg2 weight of the body, weight जो होगा ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल होगा. तो weight of the body is mg2 एंड ग्रेविटेशन फोर्स अब r-h रेडियस का ही अर्थ के बीच में काम करेगा, क्योंकि अब डिस्टेंस घट गया है. अब r के बदले में जब सरफेस पर ऑब्जेक्ट होता तो ये डिस्टेंस r होता, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अर्थ का मास और ये स्मॉल m मास जो कि अब h डेप्थ में अर्थ सरफेस से P पॉइंट पर लाया गया है. तो अब केवल r-h डिस्टेंस के बीच में r-h रेडियस का जो स्फीयर होगा जिसका मास m डैश सपोज किया गया है, तो उसका ही अट्रैक्शन प्रभाव, केवल अट्रैक्शन इफेक्ट मास स्मॉल m पर होगा, जो कि अर्थ सरफेस से h डेप्थ में P पॉइंट पर लाया गया है. तो वेट ऑफ द, इस सिचुएशन में P एट पॉइंट P वेट ऑफ द मास m इज mg2 और ये हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ ऑफ रेडियस r-h on the body of mass small m. तो mg2 इज इक्वल टू, डेट इज वेट जो होगा, वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल हो जाएगा आपके. तो वेट इज mg2 एट पॉइंट P एट डेप्थ h, इन डेप्थ h ऑफ द h फ्रॉम द सरफेस, वेट इज mg2 और ग्रेविटेशन फोर्स इज कैपिटल G, कैपिटल m डैश इज द मास ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस और स्फीयर r-h, m डैश स्मॉल m एंड डिस्टेंस हो गया. अब तो डिस्टेंस केवल इतना ही डिस्टेंस, इतना ही
डिस्टेंस घट गया, आर के बदले में आर माइनस एच का स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया। नाउ G2 इजकल टू और G2 इजकल टू कैपिटल G अपॉन आर माइनस एच स्क्वायर, कैपिटल G आर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम डैश इज 4/3 पाई आर माइनस एच क्यूब इंटू रो। अब आर माइनस एच स्क्वायर से आर माइनस एच क्यूब का एक पावर कैंसिल हो गया, एक पावर केवल बचेगा। देयरफॉर G2 इजकल टू वी हैव G2 इजकल टू G इंटू 4/3 पाई आर माइनस एच इंटू रो। डेंसिटी के टर्म में आ गया स्मॉल जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी below inside the below the surface of the earth in depth h, acceleration due to gravity in depth h below the earth surface is G2 इजकल टू, ये G2 हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस से h डेप्थ में, h गहराई में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू G2 इजकल टू कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर माइनस एच बचा यहाँ केवल, आर माइनस एच का स्क्वायर से आर माइनस एच का पावर क्यू कैंसिल होकर दो पावर कैंसिल हो गया, एक पावर बचा आर माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई रो, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इन रोमन। नाउ वी हैव टू कंपेयर इट to the value of G, that is acceleration due to gravity at the earth surface. G is small g is equal to capital G 4/3 pi r into rho, और h डेप्थ में, अर्थ सरफेस से h डेप्थ में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G2 है। तो अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 G2/G, तो उससे G2 का वैल्यू कंपेयर करने में हम सफल होंगे। G2 का वैल्यू G से कम होगा या ज़्यादा होगा ये देखना होगा। तो डिवाइडिंग 2/1 वी गेट डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by equation 1 we get G2 upon G is equal to capital G 4/3 pi r minus h into rho multiplied by capital G 4/3 pi capital R into rho। रो से रो कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। देयरफॉर वी हैव रिलेशन G2 इजकल टू G2 अपॉन G इक्वल्स टू G2 इजकल टू R माइनस एच अपॉन आर, केवल यही इसमें सर्वाइव कर रहा है, ऊपर टर्म आर माइनस एच या नीचे कैपिटल आर, और G2 अपॉन G है, G से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ G RHS में G आ जाएगा। अब आर इसको अलग अलग कर दें, R/R माइनस H/R, डेट इज R/R इजकल टू 1 हो जाएगा माइनस H/R इंटू जी पहले भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर G2 इजकल टू, तो फाइनल एक्सप्रेशन यही आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, डेट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ h फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज G2 इजकल टू G इंटू 1 माइनस H/R। दिस इज अनदर फार्मूला ऑन विच problems can be solved। तो ये क्लियर है कि अर्थ सरफेस से, इस इक्वेशन से क्लियर है G2 इजकल टू, G2 क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ h फ्रॉम द अर्थ सरफेस से h गहराई में, h डेप्थ में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू G2 है, जो कि अर्थ सरफेस का पॉइंट ए था, वहाँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू G मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस H/R। h डेप्थ है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस है, और आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, जिसका वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ फिर से एक बार क्लियर है कि G2 इजकल टू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस H/R, अगर ब्रैकेट ब्रेक कर दें, हम हटा दें, तो ये हो जाएगा G माइनस H/R इंटू जी। तो H/R का कुछ भी वैल्यू होगा तो वह G के वैल्यू में से ही घटेगा। देयरफॉर इसका मतलब है कि यहाँ प्लस रहता तो G का वैल्यू, G2 का वैल्यू बढ़ता, h डेप्थ में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता, लेकिन यहाँ पर माइनस है, इसलिए G में से ही वैल्यू, अर्थ सरफेस का जो वैल्यू होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो उसी में से इतना वैल्यू H/R का जो भी वैल्यू होगा, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से छोटा आ जाएगा, 1 माइनस H/R का वैल्यू 1 से छोटा आ जाएगा, मतलब
इसका मतलब है कि G2 का वैल्यू भी G से छोटा होगा, मतलब एज डेप्थ में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटता है। और अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जैसे कि माउंटेन्स पर जाते हैं तो वहाँ पर भी एज हाइट बढ़ने के साथ, अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ने के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटता है। और अर्थ सरफेस से के अंदर, अर्थ के अंदर भी जाने पर, मतलब जैसे कि माइंस है उसके अंदर जाते हैं तो पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू घटता है। ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने ऑब्टेन किए जिस पर कि प्रॉब्लम्स सॉल्व किया जा सकता है, जिसको कि अलग से वीडियो में मैं करूँगा। तो इसी के साथ ये पार्ट 2 चैप्टर 8 क्लास 11th ग्रेविटेशन का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।